تو صحابہ جب شراب پینا ہوتا ہے تو نماز کی ٹائمنگ دیکھ لیتے تھے، نماز کے وقت شراب نہیں پینا، فجر کے بعد ظہر تک بہت ٹائم ہوتا ہے اس دوران پی لیتے، عشاء کے بعد فجر کے بعد بہت ٹائم ہوتا ہے اس دوران پی لیتے۔ لیکن بعض صحابہ کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک دوسری کچھ صحابہ کے بیچ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ نے کیوں نماز کے وقت شراب حرام کیا؟ تو بعد میں آیت نازل ہوئی اسمہما اکبر، اس میں گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اور بہت سارے صحابہ اس وقت شراب پینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دھیرے کرتے کرتے آخر کار بڑی آیت آ گئی جس میں مطلق شراب کو حرام کر دیا گیا۔ اب حرمت کی آیت نازل ہو گئی۔ اب اس کے بعد کسی جگہ کہیں بھی شراب پینے کا کوئی رواج ہی نہیں رہا مسلمانوں اور صحابہ کے اندر۔ جب ندا لگ گئی، اعلان ہو گیا کہ شراب حرام ہو گئی، تو وہ مجلسوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہاتھ میں پیالہ ہے، منہ میں گھٹ ہے، اعلان آ گیا شراب حرام ہے، تو وہ گھوٹ تھوک دیتے، پورے مٹکے توڑ دیتے۔ تاریخ میں لکھا ہے کتابوں میں اتنی شرابوں کے پیالے اور مٹکے توڑے گئے، مدینے کی پوری گلیوں میں کئی دن تک شراب کی بو پھیل رہی تھی۔ تو اس وقت اللہ نے قرآن مجید کی آیت میں صاف طور پر شراب کو حرام قرار دیا۔ اب اس کے بعد کسی بھی مسلمان کو شراب پینے کی اور شراب پلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کے بعد احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ شراب کا عادی شخص کی ان راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، شب قدر، شب برات، جن راتوں میں بندوں کی مغفرت اور بخشش ہوتی ہے، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کی مغفرت نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے جو بندہ شراب کا عادی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، بلکہ جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں سنائیں گے۔ جنت کی خوشبو، ابھی ریچوٹی جانا ہے، حیدرآباد پہنچنا ہے، کرنول تک پہنچ گئے، کسی نے پوچھا کب آئے گا حیدرآباد؟ ابھی بس 200 کلومیٹر کے بعد حیدرآباد آ جائے گا۔ اسی طرح جنت کب آئے گی؟ ابھی 500 سال کی مسافت ہے جنت تک پہنچنے کی۔ اس 500 سال مسافت کے دور تک جنت کی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، پھیلتی ہے، وہ خوشبو بھی اللہ تعالیٰ شرابی کو نہیں پہنچائیں گے۔ جنت میں ڈالنے کی تو دور کی بات، جنت سے 500 سال تک کی مسافت کی جو خوشبو پھیلتی ہے، جیسے کوئی اچھی خوشبو لگا کے آیا وہاں تک ہے، یہاں خوشبو مہکے گی، اسی طرح جنت وہاں ہے، ابھی 500 سال ابھی گزرنا ہے، جانا ہے جنت تک پہنچنے کے لیے، اتنی خوشبو اس کی پھیلے گی، وہ خوشبو بھی اللہ تعالیٰ شرابی کو نہیں سنائیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ شراب پینے والے کو، رشتے توڑنے والے کو، جادو کرنے والے کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب آدمی زنا کرتا ہے، جب آدمی چوری کرتا ہے، جب آدمی شراب پیتا ہے، تو اس وقت اس کا ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی حالت میں وہ مرے گا تو وہ حتیٰ کہ شک ہے، بہت بعید ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مر گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے شرابی ایسا ہے جیسے مشرک بتوں کی عبادت کرتا ہے، اسی طرح شرابی بھی وہی حالت، وہی فہرست میں شامل ہوگا جو بتوں کی عبادت مشرک کیا کرتے ہیں۔ یعنی مشرک جیسا ہے اسی طرح شرابی بھی ویسا ہے۔ تو یہ سب احادیث مبارکہ تھی جو شراب کے خلاف، شراب کے عذابات کے بارے میں بتلائی گئی ہے۔ اس سے بڑی گھنونی حدیث مبارکہ تو وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو، جو بندے شراب پیتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کا عذاب یہ رکھا ہے کہ جہنم میں جب ان کو جلایا جائے گا، جب یہ جلتے رہیں گے جلتے رہیں گے، جب ان کو پانی کی پیاس لگے گی، یہ پانی پوچھیں گے، پانی ترسیں گے پانی کے لیے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان شرابیوں کو
गोता नामी नहर से पानी पिलाएगा। तो सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी ये गोता नामी नहर क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुन लो, दुनिया में जो बंदी जिना करती है, मुंह काला करती है, आज एक के पास कल दूसरे के पास, उसकी शर्मगाह कितनी गंदी हो जाती है। धंधे वाला धंधे वाली जिसे कहा जाता है, इनका अजाब जहन्नम में जब इनको डाला जाएगा, जब इनका जिस्म जब पकेगा और जब पकने के बाद इनके जिस्म की चर्बी गलेगी और इनका जिस्म गल सड़ कर इनके जिस्म का पानी खून पीप इनके शर्मगाहों के रास्ते से निकल कर बहने लगेगा। वो बहने का जो पानी है उसका नाम है गोता नामी नहर। और शराबी को इस गंदे पानी से निकालकर शराबी को पिलाया जाएगा। इतनी बड़ी वईद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराबी के अजाब और वईद के बारे में बतलाया है, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। धंधा रोजाना 300-400 कमाने वाला भी रात को आते हुए शराब के बाटल पीकर खरीद कर आएगा। हम बतलाएंगे शराब कितनी घिनौनी चीज है, इसके तिब्बी नुकसानात, इसके माली नुकसानात, इसके मुआशी नुकसानात, इसके समाजी नुकसानात, और बादशाह के अंदर जब ये लत पड़ गई तो बादशाह के तख्त कैसे उलट गए, ये सारी बातें हम इंशाअल्लाह आपको मुख्तसर अंदाज में बतलाएंगे। तो अल्लाह ने जब शराब को हराम कर दिया, अल्लाह के नबी ने शराब के खिलाफ इतने ज्यादा हदीसें बतलाई, फिर भी अगर कोई बंदा उस दौर में अल्लाह के नबी के जमाने में शराब पी लेता और मालूम हो जाता कि ये शराब पिया है, तो अल्लाह के नबी हुक्म करते मारो इसको। तो उस वक्त पूरे सहाबा जो वहां मौजूद थे उठकर कोई मुक्के मारता, कोई चप्पल से मारता। इस तरह उस शराबी की पिटाई उसी मजलिस में हुआ करती थी। इस तरह सहाबा के जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह शराबी को जलील और मारा पीटा जाता था। अगर हराम होने के बाद जब शराब वो पिएगा, इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर खत्म हो गया, सहाबा का दौर आया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर जब आया तो उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने बड़े बड़े उस वक्त के सहाबा को बिठाकर, मुफ्तियान इकराम को बिठाकर ये फैसला तय किया, अगर कोई बंदा शराब पिएगा और वो पकड़ा जाएगा तो उस पर 80 कोड़े बरसाए जाएंगे। इस तरह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने ये सजा उस पर शराब पीने वाले पर ये शामिल की है। और इसी तरह अहादीसों में आता है जब आदमी एक घूंट भी शराब पी लेता है तो 40 दिन तक उसका एक अमल भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। चाहे वो नमाज पढ़े, वो कुछ रोजा रखे, कुछ भी करे, लेकिन 40 दिन तक शराबी की दुआ इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे जब तक वो तौबा ना कर ले। एक तरफ 3 आयतें आ गई। पहली आयत आई कि नमाज के करीब मत हो, दूसरी आयत आई इसमें नुकसान ज्यादा है, नफा कम है। आप लोग देखें कितने नुकसानात, रेप शराब की वजह से, मर्डर शराब की वजह से, बीवी को मार देना शराब की वजह से, तलाक का आ जाना, तलाक लेना, खुला लेना, ये सब शराब की वजह से। ये सब घिनौनी हरकत हैं। शराबी जब शराब पीता है तो पूरे नुकसानात हैं जो दुनियावी हालात में सामना आता है। तो इस वास्ते शराब से तौबा करने की जरूरत है। आजकल लोग बहुत भोले भाले बनकर अपने बच्चों की निगरानी किए बगैर स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में छोड़ देते हैं। हत्ता की रिपोर्टों में आता है छोटा छोटा बच्चा भी ड्रग्स का आदी बन रहा है, वो इंजेक्शन ले रहा है, वो गांजे का आदी हो रहा है। ये पीछे की गली में अगर रात का कोई मुआयना कर ले तो कितने मुसलमान बच्चे आपको नजर आ जाएंगे गांजा मारते हुए, कट्टों पर बैठकर तरह तरह के ड्रग्स इस्तेमाल करते हुए मिल जाएंगे। इतने अहादीस, कितना बड़ा अजाब अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं। कब इनके तरफ दावत देकर इनको बताया जाए।
یہ لوگ نہ نمازوں کو آتے ہیں نہ جمعہ کے بیانات کو آتے ہیں. ان لوگوں تک کب ہم پہنچ کر دعوت دیں, کب ان لوگوں کو شراب سے چھڑا کر جماعت میں لے جا کر ان کو ایک پکا سچا مسلمان بنانے کی کوشش کرنے کی اس وقت بہت ضرورت ہے. تو مائع قلیل میں شراب کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو وہ پورا پانی ناپاک ہو جائے گا. اور اسی طرح جا کر ایگریکلچر والوں سے پوچھ لیجئے, کسی درخت میں پانی ڈالنے کے بجائے اس درخت کو شراب ڈالا جائے تو چند دن میں وہ پورا درخت تہس نہس ہو جائے گا, سڑ جائے گا اور سوکھ کر مر جائے گا. اتنی بری چیز ہے یہ شراب. اسی طرح بادشاہوں میں جب شراب کی عادت پڑی تو یہ بادشاہ کے تخت الٹ گئے. سکندر اعظم جہاں جاتا جیت کر آ جاتا. جب اس کے اندر شراب کی عادت پڑ گئی تو 35 سال میں شراب کی عادت میں مبتلا رہا. بیماری بڑھتی گئی, گردے فیل ہو گئے اور جسم کمزور ہو گیا تو 35 سال کی عمر میں یہ مر گیا. اسی طرح کتنے ایسے لوگ ہیں شراب کی وجہ سے کینسر میں مبتلا ہے, فلاں بڑے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہیں, حتیٰ کہ قوت مردانگی بھی ایسے لوگوں کی زائل ہو جاتی ہے. تو ان کی بیویاں مفتی صاحبوں کو فون کر کے پوچھتی ہے, میرا شوہر شراب کا عادی بن گیا, میرے 4 بچے ہیں, ان کو خرچ کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی لا کر نہیں دے رہا ہے, اور حتیٰ کہ میرے ساتھ صحبت بھی نہیں کر رہا ہے. میں اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے کیا میں دوسرا نکاح کر سکتی ہوں, یا پھر اس سے میں چھوڑ دے کر کہیں اور شادی کر سکتی ہوں؟ یہ نہ مجھے طلاق دے رہا ہے, نہ میرے خلا لینے کے لیے راضی ہو رہا ہے, اور نہ ہی میرے حقوق ادا کر رہا ہے. اس طرح عورتیں فون کر کے مول صاحبوں کو, مفتی صاحبوں کو پوچھ رہی ہے. تو شراب ایسا وبال ہے جو زندگیوں کو برباد اور تباہ کر دیتا ہے. اسی طرح بابر بادشاہ گزرا ہے, اس سے پہلے اکبر بادشاہ گزرا. اکبر بادشاہ کو جب شراب کی لت لگی, اور اس کے بیٹے 2 تھے, جہانگیر ایک بیٹا, اس کے علاوہ بھی 2 بیٹے تھے جن کو شراب کی عادت لگ گئی, تو باپ نے اپنے بیٹوں کی شراب کی عادت چھڑانے کے خاطر ان بیٹوں کو جیل میں بند کر دیا. تو وہ بیٹے جیلر میں جو کھانا لاتا ہے اس سے رشوت دے کر وہ بچے اس جیلر سے کھانا منگوانے کے ساتھ شراب منگواتے تھے, اور وہ کھانا لے جانے والا پستول کی گولیاں جہاں رکھتے ہیں اس میں شراب کے باٹل رکھ کر لے جا کر ان کے بچوں کو شراب پہنچا رہا تھا. تاریخ جانتی ہے, آپ تک اکبر کے کوئی ان 2 بیٹوں کو نہیں پہچانتے ہیں. کیوں؟ یہ شراب کے عادی تھے. تاریخ اچھے لوگوں کی لکھی جاتی ہے, خراب لوگوں کی نہیں لکھی جاتی. اس کے بعد بابر بادشاہ گزرا ہے. بابر بادشاہ جب شراب کا عادی تھا تو ہمایون بادشاہ سے ہار گیا. پھر وہ جب ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو کسی اللہ والے نے کہا, ایک بڑے گناہ سے توبہ کر لو, تمہارا یہ ہندوستان پر حملہ جو پاس ہو جائے گا. اس وقت کی بات ہے. تو اس نے شراب سے توبہ کیا. جب اس بندے نے شراب سے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس ہندوستان پر اس وقت جو حملہ کیا ہے, اس وقت بابر جب حملہ کیا تو ہندوستان پر وہ فتح حاصل کر لیا. اسی طرح بادشاہوں میں بھی شراب کی لت اور عادت پڑ جاتی تو یہ بادشاہ کے تخت الٹ جاتے تھے. ان کی حکومتیں زیادہ دیر تک نہیں چلتی تھی. تو پھر ایک عام آدمی شراب پیے گا تو وہ کیا زندگی اچھی طرح جی سکے گا؟ تو اس واسطے بزرگوں, نہ جوانوں کو پینے کی اجازت ہے, نہ امیروں کو پینے کی اجازت ہے. اس میں صرف اور صرف برائی ہی ہے. اور اسی طرح سمندر میں ڈوب کر اتنے بندے نہیں مرے جتنے ایک چھوٹی سی شراب کی باٹل میں ڈوب کر اتنے لوگ مر رہے ہیں اور اتنی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. اور اسی طرح کتابوں میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کی برائی بتلانے کے خاطر مثال دے کر صحابہ سے کہتے ہیں, سنو, ایک آدمی کو کہا جائے تیرا مرڈر کر دیا جائے گا, اگر 3 گناہ ہے اس کو تو انجام دینا ہے 3 میں سے 1, ورنہ پھر تیرا قتل ہو جائے گا, تجھے مار دیا جائے گا.
اور उसके सामने एक नौजवान लड़की को रखे, दूसरी तरफ छोटे मासूम बच्चे को रखे, तीसरी तरफ एक शराब के प्याले को रखे और कहा गया इन तीनों में से एक गुनाह का काम तुम करना है, या तो इस नौजवान लड़की के साथ गलत काम करना है, या फिर शराब का बोतल पीना है, या फिर एक मासूम बच्चे को तो कत्ल करना है। तो वो आदमी अगर शराब को मामूली समझकर पी लेगा, बच्चे को कत्ल करना तो बड़ा गुनाह है और जिना वो भी बड़ा गुनाह है, ये तो एक छोटी सी गिलास है, इसको पी लेंगे क्या हो जाएगा, इस तरह समझकर अगर कोई पी लेगा तो ये शराब उम्मुल खबाइस, उम्मुल फवाइश, ये असर इतना दिखलाएगी, ये पीने के बाद वो बच्चे को भी मर्डर कर देगा और इस तरह वो औरत से भी वो जिना और बदकारी कर लेगा। इतनी बड़ी ये घिनौनी और इतनी घटिया चीज है शराब, जिससे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने मिसालों से ये बातें हम तक पहुंचाए हैं। इसी तरह कितने समाजी नुकसानात इस शराब से हो रहे हैं। एक बच्चा जो अपने बाप को आंख दिखाकर नहीं बात करता, जवाब नहीं देता, वो बच्चा जब शराब का आदी बन जाता तो बाप को मारने लग जाता है, माँ को गालियां देने लग जाता है और उसका घरेलू हालात इतने बिगड़ जाते हैं, बीवी से तलाक हो जाता है। अगर शराब की आदत में पड़ जाए तो आखिरकार मजबूर होकर जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो बागैरत मर्द बेगैरत बनकर अपनी बीवी को दांव पर लगा देता है, बागैरत मर्द बेगैरत बनकर अपनी बेटी को दांव पर लगा देता है, अपनी माँ को भी दांव पर लगा देने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे ऐसे वाकयात किताबों में लिखे हैं, न्यूज़ों में सुना है। एक मर्द गरीब था, पीने के लिए शराब के पैसे नहीं थे तो घर में 1 रुपया भी नहीं दे रहा था, मजबूर होकर घर की औरत बाहर जाकर कमाने लगी, हत्ता के वो पैसे भी बीवी को मारकर ले जाकर शराब पीने लग गया। अब बीवी भी काम छोड़ दी, क्या वजह, मैं कमा कर गली गली घूम कर पूरे बर्तन घर पाक करके पैसे जो कुछ लाती हूं, ये पैसे भी ये लेकर जाकर शराब पी रहा है। तो जब ये बीवी शराब की, मेरे शोहर की आदत इतनी गलीज और घटिया है, तो बीवी भी काम छोड़कर घर में बैठ जाती है, तो ये गरीब बेगैरत नाहिंजार मर्द आखिरकार एक अमीर घर यानी गैर मुस्लिम के पास जाता है और जाकर कहता है 1 महीने की शराब तुम मुझे पिला दो रोजाना, मैं तुमको इसका बदला ये दूंगा कि मेरी बीवी के साथ तुम हम बिस्तरी कर सकते हो। इतना घटिया आदत और इतने घटिया काम करने पर ये शराबी लोग मजबूर हो जाते हैं। हत्ता के जिस घर का बाप शराबी हो, जिस घर में भाई शराबी हो, चाहे उनके बच्चे अच्छे हो, हालांकि बच्ची आलिमा है, बच्चा नेक हाफिज है, लेकिन बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बच्ची की शादी नहीं हो रही है, क्या वजह है, बाप शराबी है, क्या वजह है, भाई शराबी है। जब इन बच्चियों के चर्चे नेक होने के पूरे समाज में फैले हुए हैं, लेकिन फिर भी इन बच्चियों की शादी अगर नहीं हो रही है, क्या वजह, सिर्फ एक वजह कि इनका बाप या इनका भाई या इनका चचा या इनके घर का कोई फर्द शराबी है, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे बच्चियां शराब वाले बाप भाई की वजह से मजबूर होकर उम्रें गुजार रहे हैं, लेकिन शादियां नहीं हो रहे हैं। जब इन पर ये हालात आए हैं तो ये फिर मजबूर होकर ये बच्चियां गैरों के बिस्तर बन रहे हैं, ये बच्चियां पार्कों में नजर आ रहे हैं, ये बच्चियां फला फला क्लबों में नजर आ रहे हैं। जब पूछा गया क्या वजह है, क्या मजबूरी है तुमको गैर मुस्लिम का बिस्तर बनने की, अड्डों पर काम करने की, फला फला जगह रहने की, काम करने की, तो उस वक्त वो औरत को बच्ची कहती है क्या करूं आखिर मैं, मेरे बाप के शराबी होने की सजा मुझे मिल रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, अब मैं जीना गुजारा कैसे करूं, आखिर मैं मजबूर होकर ये घटिया कामों में उतर आकर आई हूं। इतने सारे नुकसानात है। आखिरकार मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों में, स्कूल के बच्चों में
कॉलेज के बच्चों में शराब की आदत का बढ़ जाना, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में सिगरेट का रिवाज आ जाना, ये कितना घटिया और कितना बेहुदा तरीका है। इनको समझ लेना चाहिए जन्नत की खुशबू भी इनको नहीं सुनाई जाएगी और जन्नत में भी इनका दाखिला नहीं होगा। बच्चे के पढ़ाई के खातिर बाप के कुर्बानियां धूप में, गर्मी में, सुबह से शाम तक ओनरों के हाथ में गालियां खाते हुए, मार खाते हुए, कोई ओनर तो माँ बहन की गालियां बकता है। इतना सब कुछ क्यों सह रहे हैं? ताकि मैं ऑटो चला रहा हूं, मेरा बेटा ऑटो ना चलाए, मैं पकवाती हूं, मेरा बेटा ना पकवाती बने, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर लॉयर बने, आईपीएस बने, फला जज बने, अच्छे पोस्ट पर आए। इस वजह से वो बाप की कुर्बानी, वो माओं की रातों में उठकर रोना कि मेरा बच्चा अच्छे लीडर बने, हुक्मरान बने और अच्छे हाफिज, आलिम, मुफ्ती बने। इस तरह अच्छा पुलिस ऑफिसर, अच्छा एक ओहदेदार बने। इस तरह बापों की कुर्बानी, माओं की मेहनत इन बच्चों की खातिर होती है। लेकिन आजकल के नौजवान 10 क्लास भी क्या पढ़ लिया, सिगरेट का आदी बन गया, शराब का आदी बन गया, इंजेक्शनों के जरिए से और टैबलेटों के जरिए से वो नशा का इस्तेमाल करने लग गया। तो फिर क्या इस कौम के बच्चे आला अफसरान बनेंगे? क्या इस कौम के बच्चे आला ओहदेदार बनेंगे? क्या फिर ऐसे बच्चे जब इन गलीज चीजों में पड़ जाएंगे तो फिर क्या ये बच्चे आईपीएस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एक अच्छा मोहब्बत करने वाला, कौम का हमदर्द ख्वाब, क्या ये बच्चे बनेंगे जब पढ़ने के जमाने में ही इन खराब और गंदे चीजों में मुब्तला हो? एक तरफ एक पागल किस्म का आदमी मीडिया में आकर कहता है कि सारे मुसलमान दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द मुसलमानों का मजहब और कल्चर है। दूसरे तरफ एक पागल किस्म का आदमी ये मुसलमानों की हालत घटिया है और ये पंचर डालने वाले लोग हैं। और एक तरफ एक बेगैरत औरत वो कहती है मुसलमानों में गरीबी है, इनके बच्चे ऐसे ही आवारा होते हैं, गंजे का इस्तेमाल करते हैं, फला फला मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और इनके घर वाले शादियां करके कुवैत वगैरह कमाने के लिए चले जाते हैं। इस तरह जालिम जब मुसलमानों पर कहता है तो इस वक्त इन मुसलमानों को चाहिए था अपने करियर बढ़ाते, अपने तालीम पर फोकस करते, एक अच्छा एमएलए का पोस्ट हासिल करते, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते, एक अच्छा कौम का हमदर्द डॉक्टर बनते, लॉयर बनते। ये बनने के बजाय गलीज चीजों में पढ़कर, गंदी आदतों को अपनाते हुए, फोनों के बेकाबू इस्तेमाल में पढ़कर और गंदे शराब की आदत में पढ़कर कौम को भी बर्बाद कर रहे हैं और मुसलमानों के नाम को भी खराब कर रहे हैं। तो आज मुसलमान तौबा करना चाहिए। माओं से गुजारिश है, बापों से गुजारिश है, अपने बच्चों की निगरानी करो। इन मौकों पर जो काम बतलाए जाते हैं, मदरसों को कायम करना, मकतबों में पढ़ाना या फिर छुट्टियों के मौके पर जमातों में भेजना, ये काम करेंगे तो बच्चे आगे चलकर अच्छे अखलाक वाले बनेंगे, माँ बाप के खिदमत गुजार बनेंगे। वरना फिर हम भी मदरसा पढ़ाते हैं, हम भी मकतब वगैरह पढ़ाते हैं। कितने माँ बाप हैं जो ये कहकर छोटे बच्चे को छोड़ रहे हैं, मेरा बच्चा सुबह उठते ही शाम तक इतने इतने बड़े गालियां दे रहा है, कुछ तो इस बच्चे को समझाओ और सिखाओ। मेरा बच्चा सुबह से शाम तक फोन में लगा हुआ है, जब मैं इससे फोन छीनती हूं तो मुझे गालियां देता है, मुझसे लड़ने लगता है, मुझे जवाब देता है। छोटे छोटे बच्चे खराब हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हत्ता के एक औरत आकर कहने लगी हजरत मेरे बच्चे की उम्र 12 साल है और वो बच्चा कपड़े में कुछ डालकर सूंघता है, जब मुझे अल्लाती हूँ, मारने आती हूँ तो वो बच्चा मुझे आंख घूर कर देखता है और मुझसे दखल कर घर से बाहर चले जाता है। इतनी तबाही मुसलमानों में आजकल बच रही है। तो इस बात से बुजुर्गों,
इस शराब से तौबा कीजिए और नौजवानों का सर्वे कीजिए, काउंसलिंग सेंटर कायम कीजिए। कौम के रहबरों से गुजारिश है, अमीर साहबों से और कमेटी के लोगों से और कौम के महल्ले के बड़े बड़े अपने आप को जो कहते हैं उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, नौजवानों का सर्वे कीजिए, इनको मस्जिद से जोड़ने की कोशिश कीजिए, इनको जमातों में निकालने की कोशिश कीजिए। अगर कोई इन जमातों के खिलाफ अभी भी बक रहा है, तुमने क्या किया? मेहरबानी में नचाया, तुमने क्या किया? उर्सों में औरतों को मर्दों को मिलाकर बच्चियों के इज्जतों को नीलाम किया। उसके अच्छा उससे बरअक्स एक आदमी जमात में ले जाकर मस्जिद के माहौल में रखता हो, उस बच्चे को जमात के साथ नमाज पढ़ाता हो, उस बच्चे को तहज्जुद का पाबंद बनाता हो, तो फिर इन लोगों को बुरे बातें कहने के लिए आ जाते हैं और इख्तिलाफ करने लग जाते हैं। सोचना चाहिए, आंखों से देखकर मुशाहदा करना चाहिए कहां क्या हो रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सुनी गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और शराब जैसे गंदी चीज से तौबा करने की, और इसी तरह बच्चों से और बड़ों से जो जो इन आदतों में मुलव्विज हैं उनसे गुजारिश है इस दिन आज ही इन गिनहौनी हरकतों से तौबा करके अल्लाह को मना ले, वरना फिर अल्लाह ताला हर किस मगफिरत और बख्शिश नहीं करेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।